silicon controlled rectifiers, SCR. So these silicon control rectifiers, they also come under the same category that we have discussed while discussing uni-junction transistor. That means they follow under the same class of thyristors. Now here you can see the make is like this, PN, PN. That is how we can say there are 3 PN junction, one PN junction here, another PN junction is J2, one PN junction is J1, this one, another PN junction is this one, another PN junction is this one. 3 PN junctions are there. There are 3 electrodes fitted to them. One electrode is fitted here, which is not shown in this diagram. So one is called anode, another one is called cathode, and this one is called gate. So the circuit symbol for SCR is like this. It is anode, cathode and gate. So it consists of 3 junctions, J1, J2 and J3. J1 and J3 operate in forward direction, while middle J2 operates in reverse direction. You can see अगर जब यहाँ पे अगर हम positive apply कर देते हैं, positive. So this P is positive, and that time it has got say no value, common value somewhere, but less than this point A. So this junction is forward biased. Okay. Here it is negative. The N is negative. This junction is definitely forward biased. This is maybe 0. So that is what happens is this junction is forward biased. But here this junction is, if this was forward taking this direction, if this becomes positive and this becomes negative going that way or considering the values that way. So then what we can say is, this junction J2 is reverse bias. Okay. So now the 3 terminals are known as anode, cathode and gate. The gate terminal is the control terminal which can turn on the device whenever required. To understand this, the working of the silicon controlled rectifier, let us break it into smaller parts. Many books they give it in different manner. Now ये एक P था, N था, P था, N था. इसको अगर इस हिसाब से हम काट दें, इसको बीच से हाफ कर दें, तो क्या बचेगा? एक बचेगा P, N और P, ये वाला P वाला पोर्शन, और एक बचेगा N इधर से, दैट N, P एंड N. सो यानी 2 ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन हो गया. एक हो गया PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा हो गया NPN ट्रांजिस्टर. उसमें एक चीज क्या देखना है कि इसका जो बेस है, दिस बेस इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर, एंड इसका जो कलेक्टर है दैट इज कनेक्टेड टू द गेट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर. इसको देख के हमको यही पता लग रहा है. इसको अगर रीड्रॉ करें इन अ डिफरेंट मैनर, so what I can say is, this is point A, it is a PNP transistor, so this side is P, this is N and this is P. तो ये N part जो है, that is the base of the transistor, that is connected to the collector of the second transistor. You can see the collector. So this is actually NPN. You can see by the arrows. तो इसका collector में join किया हुआ, और ये जो P आया हुआ है, this goes into the base of the second transistor. तो ये जो है इसका collector part, ये इसका base में चला गया. So this is what is the construction of this silicon controlled rectifier. So again it has anode, cathode and gate. It has got 3 junction, J1, J2, J3. इसमें mainly J1 and J3 जो है forward bias में काम करता है, J2 जो है that is in reverse bias. So that means it gives rise to 2 set of transistors, 2 transistors T1 and T2, where connections are as shown in the figure. इसका base इसके collector से जुड़ा हुआ है और इसका collector इसके base से जुड़ा हुआ है. So that is how these are connected. So this is what is the construction of silicon controlled rectifier. Then you can see in a different kind of a diagram, it is this.
एंड इफ IA इज फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट, IA जो लिखा हुआ है, IA कम्स लाइक दिस यहाँ, ओके, बिकॉज इट फ्लोज लाइक दिस। तो यहाँ पे दिस बिकम्स द गेट करंट। तो गेट करंट होके ये क्या हो जाएगा, द टोटल पार्ट विच कम्स हियर इज IA प्लस IG, that is the current flowing from anode to cathode, and that is, we can call it, that is the load current. So that is why it is written I load. So this is another one. Anyway, this previous circuit was enough to make you understand this. This is another, certain books or certain websites, they give it in this manner. So I have also drawn them as this pattern. Then let us see the operation. अब ऑपरेशन में क्या किए, दिस इज द सर्किट यू कैन सी, जिसमें यहाँ पे वी अप्लाई अ वोल्टेज सप्लाई, ओके, दिस इज द एनोड पार्ट, दिस इज द कैथोड पार्ट, और गेट में जो है इसमें यहाँ पे एक सप्लाई लगा के रखे हुए हैं बट यूजिंग अ स्विच। इसको जब हम क्लोज करते हैं तो इट गिव्स अ जर्क, इट गिव्स अ पल्स, इसको जब क्लोज करते हैं। तो अभी क्या है, दिस सर्किट इज ओपन, इधर ये सर्किट नहीं है। अगर नहीं है तो इट इज जस्ट दिस SCR, दैट मीन्स कहने का मतलब इट इज जस्ट दैट SCR, इस तरह, ठीक है। सो नाउ दिस SCR and this SCR is, if we go back to check the symbol, so you see this is anode and this part is cathode, and this is connected through a resistance and through a battery. कुछ इस तरह का कनेक्शन बना हुआ है, and the gate terminal is open if I don't consider this. अगर हम गेट टर्मिनल अगर ओपन नहीं है तो यहाँ पे यही चीज बनाया हुआ है, दिस सर्किट इज प्रेजेंट अक्रॉस द गेट। तो इट्स टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन इट इज वेरी सिंपल। See what happens is, let us assume that we connect this, connect करके इसको हटा लिया, कनेक्ट करके इसको अगर हटा लिया या कनेक्ट करके छोड़ दिया, which can have both options. Number 1, S is connected and अच्छा connected, and number 2 होगा कि भाई S is connected and removed, माने एक बार छू के फिर हटा लिया, टच करवाया और हटा लिया। दोनों केस दे आर द सेम। Why? Let me tell you. As soon as you touch this, what happens is there is a positive voltage available across this point. ये जहां दिस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएगा, what happens is this forward biases this junction. ये forward bias हो जाएगा, so there will be increase in the collector current. There will be increase in the collector current. जहां ये forward bias हो गया, that means the transistor becomes on. तो इसका collector current जो है ये ज्यादा flow करना शुरू किया। Now that part is connected to the base of transistor T1, यहाँ तो यहाँ जब इस कनेक्टेड है इसका कलेक्टर इसके बेस के साथ, तो इसका करंट जब बढ़ा तो दिस मेक्स दिस जंक्शन ऑल्सो फॉरवर्ड बायस। अब जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, सो देन व्हाट विल हैपन इज द कलेक्टर टू बेस दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, यानी कहने का मतलब है दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये कलेक्टर करंट जो इसका कलेक्टर है ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर, इसमें भी करंट जो है वो बढ़ जाएगा। हम इसको टच करवाएं और वैसे ही छोड़ दिए, या तो इसको टच करवा के छोड़ दिए, तो इसमें आते हैं टच करवा के छोड़ दिए, ये वैल्यू बढ़ गया, दिस इज पॉजिटिव। जहां ये पॉजिटिव हुआ ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने से ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग मींस द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस।
this collector current is connected here, it will make this one a forward bias. Now when this one is forward biased, as soon as this one is forward biased, so then that will again make this transistor to conduct. ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा एंड इसका जो कलेक्टर का दिस इज कनेक्टेड टू दिस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द गेट ऑफ दिस वन. तो ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है ये इसको फिर बढ़ा देगा, इसके कारण ये कंडीशन फिर बढ़ जाएगा. दिस पार्ट कलेक्टर करंट इट इज हियर, इट विल इंक्रीज दिस, सो इट इज अ रीजेनरेटिव प्रोसेस. ये यहाँ पे एक रीजेनरेटिव प्रोसेस हो गया. हम एक बार इसको खाली बढ़ाए थे तो इसके कारण ये बढ़ा, ये इसको बढ़ाया, फिर ये इसको बढ़ाया, यानी यहाँ पे ये गोल गोल घूमना चालू हो गया. So the transistors will be driven to saturation in no time. They will be driven to saturation in no time. So what we were discussing was, let me again repeat the entire thing. We said, just a second. We said that as soon as we apply, we put this on for a small duration or keep it on. दोनों में से कोई भी. तो as soon as we do it, what happens is this one, the gate current increases. This gate current increases, that makes the collector current of T2 to increase, but this collector current of T2 is also the base current of T1. Since collector current of T2 is increasing, the base current of T1 will increasing. That will make the collector current of T1 to increase, and then that will make the gate current of T2 to increase. तो हम पहले क्या किए, T2 का गेट करंट को पहले बढ़ा दिए. क्यों? ये स्विच से टच किए तो यहाँ एक एडिशनल पल्स आ गया. तो ये अगर बढ़ा तो T2 का कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ गया. इससे क्या हुआ, T1 का जो बेस करंट है वो बढ़ गया. इसके कारण क्या हुआ, T1 का जो कलेक्टर करंट है वो बढ़ गया. इसके कारण क्या हुआ, T2 का जो गेट करंट है वो बढ़ गया. तो यू कैन सी वी केम बैक टू द सेम स्टेज. तो इट इज साइक्लिक. तो ये बढ़ता चला गया एंड दिस इज व्हाट, एंड दे विल रीच टू सैचुरेशन इन नो टाइम. सो देन वी से दैट द SCR इज ऑन. SCR इज ऑन. ठीक है. तो SCR ऑन करने के लिए क्या जरूरत पड़ा था, नॉर्मली ये ऑफ स्टेज में है. ठीक है, हम बाद में और डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली अगर ऑफ स्टेज में है, यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज दिए तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज टर्न्ड ऑन एंड दैट इज ड्यू टू द ट्रिगर पल्स. अब आप यू कैन सी कि उसके बाद हम इसको सटा के रख दें या हटा भी लें, कुछ आता जाता नहीं है, बिकॉज नाउ अब क्या हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो गया. ये एक बार बढ़ा तो इसको बढ़ा दिया, ये बढ़ा तो इसको बढ़ा दिया, ये फिर इसको बढ़ा दिया, फिर ये इसको बढ़ा दिया. सो द गेट लूजेस कंट्रोल. सो द गेट डेफिनेटली लूजेस कंट्रोल ओवर दिस SCR. तो टर्न ऑन करने के लिए वी टुक द हेल्प ऑफ द गेट. गेट को यूज करके इसको टर्न ऑन कर दिए. बट वंस इट इज टर्न्ड ऑन, गेट हैज नो कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ दिस SCR. तब इसका बंद करने के लिए I need to remove this supply altogether. इसको हटा देना होगा so that these transistors do not get any potential supply as such, and the SCR will come back to its off stage. The SCR only then can come back to its off stage. ठीक है. So this is what is the operation of the SCR. The SCR truly works like this. ठीक है. One thing you can note down somewhere, the current through the on state of SCR is controlled by the external resistance R. ये जो external resistance R है, ये क्या कर रहा है, the entire current through SCR को यही कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. What it is doing, we will talk about it later. यही वो negative resistance वाला concept जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे, that particular thing comes into action here also. So this is what is your operation of the silicon controlled rectifier. अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ
बेसिकली, और इसको हम लोग अदरवाइज बोलते हैं द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द SCR. So we will now talk about this in detail. Now in VI characteristics, let us concentrate first on this part. This part says that forget about this G, it is not there. ये part जो है ये नहीं है in this circuit, right? This part is not there in the circuit. These are all not there. So the circuit is this much. This is the circuit. और इस सर्किट में हम क्या किए हैं, इस बैटरी का पोलैरिटी को उलाट दिए, राइट. दिस इज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, ये पार्ट नहीं है. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज यू हैव रिवर्स बायस्ड द एंटायर थिंग. ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये P से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां से जुड़ा हुआ है. तो व्हाट फ्लोज थ्रू दैट SCR is nothing but a reverse bias leakage current. So what flows is a small reverse bias leakage current. अब अगर हम उस रिवर्स बायस को और बहुत बढ़ा दें, वो जो अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पे, ये जो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज यहाँ लगाए हुए हैं, इसको अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, डेफिनेटली देयर विल बी जंक्शन ब्रेकडाउन, avalanche और Zener ब्रेकडाउन अक्रॉस द PN junctions whichever are present in this SCR. ये हो जाएगा. So that will give rise to a very sharp current which is shown here. This is nothing but the reverse current. This is the reverse current, and this voltage here will be known as the reverse breakdown voltage. तो यहाँ पे क्या हुआ, this is reverse voltage. हम अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो there was a leakage current flowing earlier in the circuit, और ये leakage current flow करने के बाद एक समय ऐसा आएगा that there will be breakdown and this will give a sharp rise to the reverse current. So this is the sharp rise at this reverse breakdown voltage, right? Now, so this was the reverse bias part. We don't have much use of this. Then what we do is we come to this part. So when there is no gate voltage applied, this circuit is present but it is not applied, the circuit is open. I am not even using this and this circuit is used. So that means I have forward biased the circuit. यहाँ से ये positive set हम यहाँ पे डाले हुए, ये अगर डाले हुए हैं, so then also what happens is this will not conduct. ये conduct नहीं करेगा. ये नहीं इसलिए नहीं करेगा because इस गेट के पास कोई ऐसा वोल्टेज नहीं जा रहा है जो कि इसको स्विच ऑन कर दे. इस गेट से इस ट्रांजिस्टर T2 के बेस को कोई ऐसा वोल्टेज नहीं मिल रहा है जो कि SCR को ऑन स्टेज में ले आए. तो गेट से हमको वोल्टेज नहीं मिला. तो देन वी थॉट कि ओके फाइन, गेट से अगर नहीं मिलता है तो व्हाट वी विल डू इज हम इस वोल्टेज को और बढ़ा के देखते हैं. तो इस वोल्टेज को अगर हम और बढ़ाएं तो व्हाट यू आर डूइंग इज, दिस इज पॉजिटिव, यू आर ट्राइंग टू पंप मोर एंड मोर होल्स इनटू द वेरी थिन बेस लेयर. इस बेस लेयर पे मोर एंड मोर होल लेवल को पंच कर रहे हैं. तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज यू सी द कर्व हियर. सो एक लीकेज करंट हमारा यहाँ पे फ्लो कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस बायस, एंड यू सी जंक्शन J2 was reverse bias. तो यहाँ से ये ऑफ जरूर है बट देयर विल बी अ फ्लो ऑफ अ लीकेज करंट, एंड दैट लीकेज करंट इज शोन लाइक दिस. दिस इज व्हाट इज द लीकेज करंट. ये एक लीकेज करंट फ्लो कर रहा था. अब लेकिन हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज को. तो आई टोल्ड यू मोर एंड मोर होल्स विल बी पम्प्ड इनटू द बेस रीजन. तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज it will automatically start, this collector will gain some of the holes, and then what will happen is it will start conducting. और ये जहाँ कंडक्ट करना शुरू किया तो इसके बेस को एक करंट मिल जाएगा. इसके बेस को जहाँ करंट मिला दैट विल गिव राइज टू दिस करंट, एंड अगेन दिस थिंग विल स्टार्ट. तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज को हम बढ़ा दें तो देयर विल बी अ वोल्टेज कॉल्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज. दिस इज कॉल्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज. ठीक है, ब्रेक ओवर वोल्टेज को यूजुअली दे कॉल इट VBO.
दैट इज व्हाट इज द ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज तक जहां पहुंचे, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज में पहुंचने के बाद क्या हुआ, द SCR स्टार्ट्स कंडक्टिंग। So when the SCR starts conducting, that means more current will flow through it. More current will flow through it. अभी तक गेट नहीं है, ये चीज नहीं है। So because हम फॉरवर्ड बायस को बढ़ाते चले गए, आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज व्हाट विल हैपन इज दिस SCR विल स्टार्ट कंडक्टिंग। और जितना हम एक्चुअली वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज अपैरेंटली it will keep on conducting, more and more current will start flowing through it. तो हम लोग वो यूजीटी के कॉन्सेप्ट से क्या जान रहे हैं, मोर करंट अगर इसके थ्रू से फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस घटता जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस अगर घटता जा रहा है तो द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट के विल डेफिनेटली डिक्रीज। सो यही चीज इस ग्राफ में दिखा हुआ है। आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज व्हाट हैपेंस इज the voltage suddenly falls down, the voltage across the SCR suddenly falls down, और ये fall down किया, और उसके बाद क्या होगा, it falls down and then it starts increasing the current I, it starts increasing in a normal natural manner. So ये reverse bias जा रहा था, reverse bias current, break over voltage में जहां गया ये SCR turn on हो रहा है, SCR जहां टर्न ऑन हो रहा है, there is a sharp decrease of voltage about the SCR, and then the SCR starts working. That means that I load, we wrote I load was equal to IA plus IG. इसमें ये चलता चला जाएगा। So now what happens is कि इसको हम तो दे के इसको ऑन करवा दें, but there is another method that as soon as, rather than applying this big a forward voltage, what we do is we apply this gate circuit a trigger pulse. तो हुआ क्या, इस ट्रिगर पल्स को देने से जो भी वोल्टेज यहां पे था, whatever voltage was here, उससे मतलब नहीं हो कि ये ट्रिगर पल्स क्या किया, इस करंट को बढ़ा दिया, गेट करंट को बढ़ा दिया, जिससे this becomes forward bias, this starts conducting, this increases this current, which in turn increases this current. तो क्या हुआ, इस वोल्टेज को बढ़ाए बिना, supposedly ब्रेक ओवर वोल्टेज इज 7 वोल्ट्स, ठीक है, हम यहां पे क्या है, हम 5 वोल्ट पे हैं, हम 7 वोल्ट पे जाएंगे तो ये चीज होगा, दिस थिंग विल हैपन। लेकिन हम 7 वोल्ट पे नहीं जाके हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक पल्स दे दे रहे हैं विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो जहां इसको हम टच करवाएंगे दैट 2 वोल्ट इज देयर, सो ऑल टुगेदर द इफेक्ट हियर इज दैट ऑफ 7 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी टर्न ऑन, दिस इज टर्न ऑन, और जहां ये टर्न ऑन हुआ द वोल्टेज अक्रॉस द SCR विल डिक्रीज, सो वोल्टेज अक्रॉस द SCR विल डिक्रीज, सो हियर। लेकिन हम क्या किए, मेरा ब्रेक ओवर वोल्टेज तक जाने का जरूरत नहीं पड़ा, यहीं से क्या हुआ, ये यहां पे ले आया, यहीं से ये ले आया इस जगह पे, विच इज द होल्डिंग करंट कॉल्ड IH। IH इज द होल्डिंग करंट, हम होल्डिंग करंट तक पहुंच गए इस वैल्यू तक, rather than applying that much of ब्रेक ओवर वोल्टेज। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर या तो हम गेट को जब नहीं यूज कर रहे हैं तो हम जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं टू अचीव द ब्रेक ओवर, ओके। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है गेट को यूज कर रहे हैं, और गेट को यूज करके इसके थ्रू से एक छोटा सा पल्स दे दिए, which will add on with the already present voltage V जो भी था, एंड इसके कारण क्या हुआ, इतना दूर तक हमको फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं देना पड़ा, कम ही वोल्टेज दिए और उसके साथ वो पल्स दे दिए। तो व्हाट हैपेंस इज वी कम टू दिस पॉइंट एंड देन द SCR स्टार्ट्स कंडक्टिंग नॉर्मली। SCR जो है अपना कंडक्शन जो है वो नॉर्मली स्टार्ट कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट। के केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस होल्डिंग करंट इज नथिंग बट द मिनिमम एनोड करंट, ठीक है, आफ्टर विच द SCR goes to the
on stage from off stage. ऑफ स्टेज से ऑन स्टेज में चला गया SCR. दूसरा तरीका ये भी बोलने का है कि द टेक्स्ट दैट आई हैव गिवन यू विल फाइंड, वो बोलेगा कि इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम एनोड करंट वेयर इट इज टर्न्ड ऑफ फ्रॉम ऑन स्टेज. जस्ट द अदर वन, जस्ट द ऑपोजिट वे ऑफ टेलिंग इट. तो होल्डिंग करंट वही चीज है कि इतना दूर तक ये करंट होल्ड करके रखा, उसके बाद ऑफ स्टेज में है, यहां से ये ऑन में चला गया. उल्टा लेवल में बोलेंगे कि यहां जहां ये ऑन से जहां पे ये ऑफ हो रहा है. दैट मीन्स कहने का मतलब है अगर एनोड करंट जो है, एनोड करंट इफ इट बिकम्स लेस देन द होल्डिंग करंट, SCR विल बी इन द ऑफ स्टेट. और जहां एनोड करंट becomes greater than the holding current, the SCR is in on state. So this is the graph for that. This is the knee voltage जहाँ पे ये bend हो रहा है. This dotted line is not there. This is, it comes straight here. ये अचानक से decrease हुआ because it is on. So now, but what happens is eventually the entire, all this current, this anode current is eventually governed by the resistance, the external resistance which is connected, that is RL. और एक चीज क्या है कि एक बार ये SCR ऑन हो गया तो गेट हैज नो इफेक्ट ऑन दैट. तो गेट को अब हम ऑन करें या ऑफ करें या टच करवा के रखवा दें, अलग कर दें, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द SCR. तो इन ऑर्डर टू स्विच द SCR ऑफ, वी नीड टू रिमूव द वैल्यू ऑफ, we remove this V, or we need to take it down to some stage, in such a stage that it comes down below the breakover voltage. So this is what is the working of the SCR and the IV characteristics of the SCR.